मुकद्दस में जिसने निकाल लिया है, एक ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है कि खुदा मोहब्बत है। क्या है? एक ब्रैकेट बना हुआ है। अगर बाइबल मुकद्दस में आप देखें तो आपको ब्रैकेट नजर आएगा और उसमें लिखा हुआ है कि खुदा मोहब्बत है। लिखा हुआ बहन, लिखा हुआ बेटियों, बोले बताएं बेटा, बताएं, लिखा हुआ है। क्या बात है? बेटियों आपने काम निकाला है तो निकाला है बेटा, तो उसमें देखिए ब्रैकेट बना हुआ है 3 बाब के अंदर, 4 बाब के अंदर, जिसमें खुदा लिखा हुआ है कि खुदा मोहब्बत है, लिखा हुआ है। शाबाश। किस बेटी को भी खुदा का पाक उभारता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो 7 आयत से लेकर 21 आयत तक जो है, बाप के आखिर तक जो है वो पढ़े। शाबाश। जिससे भी खुदा का पाक उभारता है बहनों में से। खुदा कादर मुंदे का आसमानी बाप, जिंदा खुदा के बेटे से आज सुबह खुदा में दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे खुदा, इसको शुभ कलाम के लिए खुदा को मुझे बख्शा। दुआ करता हूँ कि खुदा इस कलाम को मैं ना बोलूँ बल्कि तो बोलने में से होकर हम लोगों के साथ कलाम होगा, ताकि खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत मिलेगी। यीशु मसीह के नाम। कलाम मुकद्दस में मोहब्बत हमें, खुदा जो मोहब्बत के बारे में हमें बताता है, आए अजीजों को हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है। पौलुस रसूल जो है, जिसका ये खत है, वो कहता है कि आओ हम एक दूसरे से क्या करें, मोहब्बत रखें। हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। मोहब्बत जो है किसकी तरफ से मिली है? खुदा की तरफ से।
جو ہم نے ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے عزیزوں، وہ محبت خدا کی طرف سے ہمیں ملی ہے. وہ محبت ہمیں خدا کی طرف سے ملی ہے جو ہم نے ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے. اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہے اور جو خدا کو جانتا ہے. اور جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے. پہلی بات ہے، خدا کہتا ہے کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، خدا کہتا ہے کہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں. اور پھر خدا کہتا ہے کہ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا. جو میرے عزیزوں خدا کے ساتھ محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جان سکتا، کیونکہ اس کے دل کے اندر خدا کے لیے محبت ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، یہ تو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ کلام مقدس کی بات ہے کہ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے. جو محبت خدا ہم سے ہے، جو محبت خدا کو ہم سے ہے، وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں. خدا نے ہم سے بہت بڑی محبت کی. خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہماری محبت کے لیے خدا نے بھیجا. جب خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے سبب سے کیا رہیں؟ زندہ رہیں. اگر میرے عزیزوں ہم نے زندہ رہنا ہے تو کس کے سبب سے رہنا ہے؟ خدا کے بیٹے کے سبب سے ہم نے زندہ رہنا ہے. آگے لکھا ہوا ہے، محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا. ہمارے گناہوں کے لیے، ہمارے دکھوں کے لیے، ہماری تکلیفوں کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے بھیجا، کفارے میں دے دیا. خدا کی یہ محبت ہے ہم کے ساتھ کہ خدا نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے بیٹے کا کفارہ دیا، اپنے بیٹے کو بخشا. یہ ہے محبت. اور خدا جو ہے، جو میرا اور آپ کا خدا ہے، وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایسی محبت ہو کہ ہم دوسروں کے لیے جو ہے اپنی جان کو کیا کر سکیں؟ قربان کر سکیں. دوسروں کے لیے دکھ سہ سکیں، دوسرے کے دکھ کے اندر آپ شامل ہو جائیں، اسے اپنا دکھ سمجھ لیجیے. پھر آگے 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، آئے عزیزوں، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے. جب خدا نے ہم سے اتنی بڑی محبت کی ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے بخش دیا ہے، تو آگے کلام میں ہمیں خدا یہ کہتا ہے کہ اے عزیزو، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے. ہم بھی ایک دوسرے سے کیا کریں؟ محبت رکھیں، ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے سے محبت رکھیں. خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہمیں
रहता है। साफ सफाई बात लिखी हुई है खुदा ने, साफ सुथरा कलाम मुकद्दस में खुदा ने लिखा हुआ है कि अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हमें रहता है। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो फिर जो खुदा है हमारे साथ रहता है। अगर हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखेंगे, अगर हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत नहीं है तो फिर खुदा भी हमारे साथ नहीं है। और उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में कामिल हो गई, क्योंकि उसने अपने रूह में से हमें दिया है। उससे हम जानते हैं कि हम उसमें कायम रहते हैं और वो हम में है। हम ये जान सकते हैं कि जब खुदा की मोहब्बत हमारे साथ होगी तो फिर हम खुदा में कायम रह सकते हैं। अगर खुदा की मोहब्बत हमारे दिल में कायम नहीं है तो फिर हम खुदा की मोहब्बत में कायम नहीं रह सकते। जो भी इकरार करता है कि यीशु खुदा का बेटा है और खुदा उसमें रहता है और वो खुदा में जो मोहब्बत को हमसे है उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है। खुदा की मोहब्बत को हम जानते उसी सबब से है, उसी तरह जानेंगे जब खुदा की मोहब्बत हमारे दिल में होगी। जब खुदा का प्यार हमारे दिल में होगा तो फिर हम खुदा की मोहब्बत को क्या है कि जान सकेंगे। आगे लिखा हुआ है खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है। वही बात जो पीछे हमने पढ़ी है वही बात ये आगे है कि खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है। तो हमें जरूरत है कि हम किस में कायम रहें? खुदा में कायम रहें। सबसे पहले कि खुदा की मोहब्बत हमें कायम होनी चाहिए। जब खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर होगी, हमारे दिल में होगी, तो फिर हम खुदा के साथ भी क्या हो सकते हैं? कायम रह सकते हैं। अगर हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत ही नहीं होगी तो फिर हम खुदा के साथ कायम नहीं रह सकते। तो मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम हमेशा खुदा के खौफ और खुदा के डर से डरते रहें खुदा से, ताकि खुदा की मोहब्बत जो है वो हमें कायम रहे। आगे लिखा हुआ है इसी सबब से मोहब्बत हमें कामिल हो गई ताकि हमें ताकत के दिन दलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हों। या थोड़ा सा ये हमें हवाला मिलता है कि जैसा खुदा है हमें भी क्या है वैसा होने की जरूरत है। हम भी वैसा ही हो जाए जैसा हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। फिर आगे लिखा है मोहब्बत में खौफ नहीं होता। मोहब्बत में क्या नहीं होता? खौफ नहीं होता। बल्कि आगे लिखा है कि बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को क्या कर देती है मेरा अजीजों? दूर कर देती है। मोहब्बत जो है एक ऐसी मोहब्बत है तो वो गुस्से को भी जो है दूर कर देती है। आगे बहुत बड़ी खूबसूरत और दो बातें लिखी हुई हैं। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और वो अपने भाई से अदावत रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता तो वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रखता। यहाँ हमें ये मिलता है कि अगर मैं फिर फर्ज कहता हूं कि मैं अपने भाई से मोहब्बत रखता हूं
محبت رکھتا ہوں، اور میں محبت رکھتا نہیں ہوں لیکن کہتا ہوں لوگوں کے سامنے کہ میں اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہوں، تو خدا کہہ رہا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ جو اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ جو اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے پھر وہ اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے، تو پھر خدا کہتا ہے کہ وہ مجھ سے بھی کیا کرتا ہے؟ محبت رکھتا ہے۔ اگر میں اپنے بھائی سے محبت ہی نہیں رکھتا تو پھر خدا کہتا ہے کہ مجھ سے بھی بھائی محبت نہیں رکھتا۔ تو بس کہہ دیتا ہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں، لیکن اگر تو اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے تو پھر تو مجھ سے بھی محبت رکھتا ہے۔ اگر تو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا تو خدا کہہ رہا ہے کہ پھر تو مجھ سے بھی محبت نہیں رکھتا۔ تو ہمیں چاہیے اس کلام کے وسیلہ سے کہ جو بھائی اپنے بھائیوں سے محبت نہیں رکھتے وہ آج سے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کرے گی؟ محبت رکھنا شروع کر دیں، تاکہ خدا کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے اندر کیا ہو جائیں؟ قائم ہو جائیں۔ کیونکہ خدا فرما رہا ہے کہ اگر آپ اپنے بھائی سے محبت رکھتے ہو تو پھر میں بھی آپ سے کیا کرتا ہوں؟ محبت رکھتا ہوں۔ اگر ہم اپنے بھائی سے محبت ہی نہیں رکھتے تو پھر خدا کہتا ہے کہ آپ مجھ سے بھی محبت نہیں رکھتے۔ آگے لکھا ہوا ہے اور ہم کو اس کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھتا ہے۔ خدا کی طرف سے کیا ملا ہے جی؟ حکم ملا ہے۔ خداوند کی طرف سے حکم ملا ہے کہ جو اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے بھی کیا کرتا ہے جی؟ محبت رکھتا ہے۔ تو میرے عزیزوں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کیا کریں گی؟ محبت رکھیں۔ محبت رکھنا بہت ضروری بات ہے۔ اگر ہم یوحنا کا اسی یوحنا پہلا خط جو ہے اس کے دوسرے باب کی اگر ہم 15 آیت دیکھیں اس میں بھی ہمیں یہ محبت کے بارے میں ملے گا۔ اگر کسی نے نکال لیا تو پڑھ لے 15 آیت سے لے کے 17 آیت تک۔ یہاں بہن نے پڑھا ہے بڑا خوبصورتی کے ساتھ کہ نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ یا خدا نے صاف جو ہے بیان کر دیا ہے کہ نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں ہے۔ جو یہ دنیا داری کی چیزوں میں رہتا ہے یا دنیا داری کی چیزوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے تو وہ خدا کہتا ہے کہ دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں ہے۔ اگر وہ دنیا داری کی چیزوں میں محبت رکھتا ہے تو پھر خدا کہہ رہا ہے کہ جو دنیا داری کی چیزوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ خدا کے ساتھ محبت نہیں رکھ سکتا۔ جو کلام مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک نوکر جو ہے 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔
تو یہاں یہ صاف لکھا ہوا ہے، اگر ہم بھائی رومن دنیا سے محبت رکھتے ہیں تو پھر ہم خدا سے محبت نہیں رکھ سکتے۔ دنیا کی چیزوں سے نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں خدا کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہشیں، زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو دنیا کی طرف سے ہیں، یہ ہمارے خداوند کی طرف سے نہیں ہیں۔ آگے بڑی خوبصورت بات ہے، لکھا ہوا ہے کہ دنیا اور اس کی خواہشیں دونوں مٹ جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ اب تک کیا رہے گا جی؟ قائم رہے گا۔ جو خدا کے مطابق چلتا ہے، خدا کی مرضی پر چلتا ہے، وہ اب تک جو ہے، آخر تک جو ہے وہ قائم رہے گا۔ یہ ہے خدا کی محبت۔ آئیے اسی طرح ہم ایک حوالہ اور دیکھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں 13 باب، کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھٹھڑاتا پیتل اور جان جناتی چاند ہوں۔ یہاں خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں آدمیوں کی یا فرشتوں کی زبانیں بولوں، بڑے بڑے باتیں کروں، لیکن اگر میرے دل کے اندر محبت ہی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب باتوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا مان یہاں تک ہو کہ کامل ہو تو پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھ میں اتنی قوت ہو کہ میں پہاڑوں کو ہٹا دوں، اور اگر میرے دل میں محبت نہیں ہے تو پھر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ محبت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلنے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ کہتا ہے اگر میرے پاس بہت سارا مال ہو، بہت ساری دولت ہو، دھن دولت، میں سب کچھ جو ہے لوگوں کو دے دوں، لیکن اگر میرے دل میں محبت ہی نہیں ہے تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ آگے یہاں لکھا ہوا ہے کہ محبت صابر ہے۔ محبت کیا ہے؟ صابر ہے۔ محبت مہربان ہے۔ محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی، نہ زیبا کام نہیں کرتی۔ محبت جو ہے میرے عزیزوں، یہ ساری چیزیں جو لکھی ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ محبت کے اندر یہ چیزیں جو ہے نہیں پائی جاتی۔ محبت جو ہے اس میں یہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی، نہ زیبا کام نہیں کرتی، وہ اپنی بہتری نہیں چاہتی، جو جناتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی، بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے۔ محبت کس سے خوش ہوتی ہے؟ راستی سے خوش ہوتی ہے میرے دوستوں۔ یہ جو ساری بہت ساری چیزیں جو ہے جو میں نے پڑھی ہے، یہ سب چیزیں بیکار ہیں، یہ سب چیزیں مٹ جانے والی ہیں، لیکن خدا ہمارا ہمیں یہ کہتا ہے راستے سے خوش ہوتی ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے سب کچھ سہ لیتی ہے،
सब कुछ यकीन करती है, सब बातों में उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है, मोहब्बत को ज़वाल नहीं। नबूवतें हों तो मौकूफ हो जाएंगी, ज़बानें हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम, लेकिन कामिल जब आएगा तो नाकिस चाहता रहेगा। आखिरी आयत में लिखा हुआ है 13वीं में, गरज, ईमान, उम्मीद, ये तीनों धनी हैं, मगर अफजल इनमें क्या है? मोहब्बत है। अफजल क्या है कि चीजों? मोहब्बत है। मोहब्बत जो है वो हमारी जिंदगी में जो है कायम होनी चाहिए। जब हमारे दिल में मोहब्बत कायम होगी तो फिर हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा हवाला दूंगा, फिर उसके बाद अपने कलाम को खत्म करूंगा। अगर हम यहाँ थोड़ा सा देखते हैं, ये मौजूद आएगा मोहब्बत के ऊपर ही। पहला सैमुएल है, उसका 17 बाब है, उसकी 34 आयत में पढ़ने लगा हूं। लिखा हुआ है, तब दाऊद ने साउल को जवाब दिया कि तेरा खादम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई भरा उठा ले जाता तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता था, और जब वो मुझ पर जड़ता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता। तेरे खादम ने शेर और रीछ दोनों को जान से मारा है। क्या किया जी? शेर और रीछ दोनों को जान से मारा है। ये बात है मानने वाली कि दाऊद ने शेर और रीछ को मारा। क्यों भाई रोमन? ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान जो है जिस पर आप ही हैं, आप शेर और रीछ को मारो, है मुमकिन ऐसा? जी है। भाई ने बोला है, और वाकई ये बात दुरुस्त है, ये है। भाई रोमन के जोर जाता है, ये मुमकिन है कि भाई रोमन जो है ये शेर और रीछ को मार सकता है, जिस तरह दाऊद ने शेर और रीछ को मारा है, क्योंकि दाऊद के साथ खुदा की मोहब्बत है। जब दाऊद के साथ खुदा की मोहब्बत है तो मोहब्बत जो है वो शेर और रीछ को मार सकती है, क्योंकि दाऊद ने जाती जूलियस को मार गिराया, जो बहुत बड़ा जंगजू था और बड़ा कदावर था। दाऊद जो है वो कद में भी छोटा था, क्या कहते हैं, कद में भी छोटा था, तो उसने जाती जूलियस को भी मार गिराया। मार गिराया किस तरह कि उसने 5 चिकने चिकने पत्थर लिए, उन पत्थरों को अपने झोले में डाल दिया। उस झोले में जब वो जंगल बियाबान में भेड़ें चुराया करता था तो उसके पास एक उसका झोला होता था जिसमें खाने पीने की वो चीजें अपनी रखता था। उसी झोले के अंदर उसने 5 पत्थर लेके डाल दिए, और उसी झोले के अंदर जो थी तलवार भी थी। वो तलवार थी जिसने उस जाती जूलियस के सर को जो है कत्ल करना था उस तलवार से। वो तलवार उसके झोले के अंदर पड़ी होगी। वो तलवार पता किसी को कौन थी? खुदा के खादम के अलावा कोई बताए। जिस तलवार से दाऊद ने उसको मारा वो कौन सी तलवार थी? गिलेद की। शाबाश, बहनों के लिए शाबाश, जोरदार तालियां। वो एक गिलेद थी।
फलंग उसको इसमें लिखा हुआ है, लिखा पे फलंग, इसका मकसद है कि वो गिलेल जो पंजाब साइड पे अक्सर यहाँ की, पंजाब में तो खैर बहुत ज्यादा होता है, यहाँ बहुत कम होता है कि नौजवान गिलेल बनाते हैं, उसमें फिर पत्थर रख के तो जानवरों को मारते हैं, वो निशाना अपना बनाते हैं। वो गिलेल थी। गिलेल के अंदर जब उसने वो पत्थर डाला तो जब जाती जुलूस उसकी तरफ बढ़ा तो उसने वो गिलेल निकाली अपने झोले से और जोर से उसको खींच कर मारा तो वो जाती जुलूस के यहाँ माथे के अंदर पत्थर जो वो घुस गया। जब वो पत्थर घुसा तो जाती जुलूस जो वो जमीन पर गिरा। जब वो जमीन पर गिरा तो दाऊद भाग कर गया, उसकी म्यान से उसकी तलवार निकाली और फिर उसका सर जो था वो जिस्म से अलग कर दिया। तो मेरे जिंदू ये सारी चीज बताने का मकसद मोहब्बत है। ये भी दाऊद के अंदर मोहब्बत थी, उस मोहब्बत के वसीला से उसने उस जाती जुलूस को क्या किया जी, मार गिराया। तो मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम भी अपनी मोहब्बत में जिस तरह दाऊद खुदा की मोहब्बत में कायम रहा और उसने बड़े बड़े काम किए, इसी तरह अगर हम भी मोहब्बत में, खुदा की मोहब्बत में कायम रहेंगे तो फिर भी हम जाती जुलूस की तरह बड़े बड़े काम करेंगे, फिर हम बड़े बड़े दुश्मनों को जो है मार गिराएंगे अगर हमारे दिल में खुदा की क्या होगी, मोहब्बत होगी। पाकड़ा में बड़े अर्जुन ले जाने पर खुदा की बरकत। आइए चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए, खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए। खुदा ने आज सुबह से कलाम किया है, सब आंखें बंद हो जाएं, सर झुक जाएं। हमने खुदा के कलाम में से सीखा है कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। हमने सीखा है खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, हमने उसकी मोहब्बत ही से उसे जाना है। क्या मसीह की मोहब्बत हमारे दिलों में है? क्या हम यीशु से प्यार करते हैं? खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है, ये कौम होठों से तो मेरी ताज़ीम करती है लेकिन इनका दिल मुझसे दूर है। कहते हैं मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, आई लव यू, लेकिन अंदर नफरत है, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, अदावत है। क्या हम ऐसी मोहब्बत से मसीह की मोहब्बत को जाहिर कर सकते हैं? नो। हमें ऐसी मोहब्बत करनी है जैसे यीशु ने हमसे मोहब्बत की। He gave his life for us. उसने अपना आप हमारे लिए दे दिया। लेकिन हमने पढ़ा, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और छनछनाती झांझ हूं। मैं शोर शराबा, बातें, लफ्ज, लेकिन अंदर बातन खाली है। आ जाओ मसीह की मोहब्बत को अपने दिलों में उतरने दें। कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। शायद हम भी खौफ सदा हो, इनसिक्योर हो, लेकिन आओ आज अपनी जिंदगियों में मसीह के कामिल मोहब्बत को बसने दें, उसे घर करने दें। ये मोहब्बत सतही ना रहे, ये मोहब्बत जड़ पकड़ जाए। हम एक दूसरे के लिए कुर्बानियां देने से भी दरेक ना करें। और आज मैं चाहता हूं हम अपनी मोहब्बत के तौर तरीकों पर गौर करें। खुदा ने इसीलिए हमसे कलाम किया है क्योंकि वो हमें सुधारना चाहता है। खुदा इसीलिए अपने बंदा के वसीला से हमसे बोला है ताकि हमारी जिंदगियां मोहब्बत के हकीकी जावियों में या हकीकी पहलुओं में मजबूत हो जाएं। आइए खुदा से कहें, खुदावन मुझे मोहब्बत करना सिखा। खुदावन मैं सच्ची मोहब्बत रखूं, ऐसी मोहब्बत नहीं जो देने और लेने पर मुनहसर हो,
बल्कि ऐसी मोहब्बत जो कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाए। जैसे तूने हमसे मोहब्बत की। कलाम में लिखा है हमने खुदा की मोहब्बत को किसी से जाना है कि यीशु ने पहले हमसे मोहब्बत की और हमारी मोहब्बत में अपना आप बलिदान कर दिया। ये मोहब्बत है। Do we love him? क्या हम उससे प्यार करते हैं? क्या हम उससे मोहब्बत करते हैं? आज अपने दिलों में झांकिए, अपनी जिंदगियों पर गौर करें। क्या मैं ऐसी मोहब्बत रखता हूँ कि मैं उसके कलाम पर अमल करूं? मसीह ने कहा जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे हुक्मों पर अमल करता है। क्या हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं? क्या हम उसके कलाम को मानते हैं? क्या हम उसके घर में आते, दुआ करते, अपने बच्चों, खानदान, माँ बाप, लाइफ पार्टनर से मोहब्बत रखते हैं? मसीह ने कहा कोई अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं रखता, ना उसे मारता कूटता है। अगर एक कोई शख्स अपनी बीवी के साथ जुल्म करता है, उसे उस पर तशद्दुद करता है, उसे बुरा भला कहता है, मसीह ने कहा मैंने तुमसे ऐसी मोहब्बत नहीं की। मैंने तो तुमसे ऐसी मोहब्बत की है जब तुम गुनहगार थे, गिल्टी थे, मैंने तुम्हें गले लगा दिया, मैंने तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया, मैंने तुम्हारी कीच और तुम्हारे गलाजत को दूर कर दिया। बिकॉज़ आई लव यू, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे अजीजों, आओ आज अपनी मोहब्बत जो मसीह के लिए है उसे असेस करें, उसका मुहासबा करें, और जो मोहब्बत आप एक दूसरे से रखते हैं उसके बारे में भी सोचें। मसीह ने कहा जो मुझसे मोहब्बत रखता है और अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता वो झूठा है। How we love the Lord, हम मसीह से कैसी मोहब्बत करते हैं। आइए चंद लम्हों के लिए बातों पर गौर करें और मैं दरख्वास्त करूंगा खुदा की खादमा अपनी अजीज बहन मुबशरा एल्का परवेज से कि वो आएंगी खुदा के खादम के लिए और इस खूबसूरत कलाम के लिए वो बरकत की दुआ करेंगी। आइए मिलकर चंद लम्हों के लिए अपनी आंखें बंद करें और इस बरकत की दुआ में शामिल हों। आसमानी बाप दिल के था गिराएंगे शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन इस मौका इस घड़ी के लिए खुदावन जो आपने हमारी जिंदगी में दिया। खुदावन इस खूबसूरत खुदावन इस तरह से मुकद्दस हैकल के लिए खुदावन जो आपने हमारी जिंदगी में दी, हम शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम से। खुदावन सारी लीडरशिप पर खुदावन इस तरह से बरकत भरा हाथ जाते हैं खुदावन, और खुसूसन खुदावन आज जो कलाम मुकद्दस खुदावन आपके बेटा ने पेश किया है मसीह यीशु के नाम से मोहब्बत के बारे में खुदावन, तो हम अपनी जिंदगी को खुदावन सुधारे और खुदावन अपनी जिंदगी के ऊपर गौर फिक्र करें तो मसीह यीशु के नाम से इसके ऊपर खुदावन तैयार करें ओ खुदावन यीशु के नाम से। और ये खुदावन इस बात का खुदावन सवाल हो कि हम खुदावन कलीसिया मोहब्बत करती है खुद से भी, ताकि खुदावन इस तरह से अपने आप को खुदावन तैयार करने वाले हो सके। खुदावन तब जब आपकी कमिंग हो, जब आप हमें लेने के लिए आए मसीह यीशु के नाम से, हम खुदावन तैयार हो मसीह यीशु के नाम से। ओ हालेलुया खुदावन आपका जलाली हाथ पूरी कलीसिया पर, तमाम खादिमीन पर खुदावन और खुदावन के पास साथ कर रहा है मसीह यीशु के नाम से जो हमने मांगे बड़े ईमान से मांगे। आमीन। आइए सब मिलकर कहें आमीन। आमीन। सब मिलकर कहें हालेलुया। हालेलुया। पिछले द्वार खुदा के कारों ने बहुत तफसील से खुदा के कलाम में से हमें सिखाया कि जब हम खुदा को देते हैं इससे भी हम अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। आमीन। आपको पता है यूहन्ना की इंजील उसके 30वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, जो इंजील मुकद्दस का जो है वो समराइज करके अगर आप उसे पेश करें तो खुलासा ये है, खुदा ने दुनिया से, सब मिलकर कहेंगे खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो
पाए